Then there is a one more point, a common security incident type. Unauthorized security incident type, इसमें सबसे कॉमन सिक्योरिटी इंसिडेंट टाइप्स क्या हैं या जिनके थ्रू अटैक्स होता है. तो अनऑथराइज अटेम्प्ट टू एक्सेस सिस्टम और डाटा, पहला पॉइंट. टू प्रिवेंट ए थ्रेट एक्टर फ्रॉम गेनिंग access to a system or data using an authorized user account, implement two-factor authentication. This requires a user to provide a second piece of identifying information in addition to a password. Additionally, encrypted sensitive corporate data at rest. It travel over a network using suitable software और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी. आपको सभी को पता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब आपको सिक्योरिटी का लेवल थोड़ा अप ले जाना है किसी तरीके से, ताकि अगर डायरेक्टली आपका पासवर्ड किसी को मालूम भी पड़ जाए तो भी आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने से बचे. जैसे कि आज की डेट में ईमेल पे भी लोग कर देते हैं और करना भी चाहिए, अपने जीमेल को टू फैक्टर ऑथेंटिकेट करें. अगर आप के सिस्टम के अलावा वो कहीं से भी लॉगिन होता है तो पहले पासवर्ड डालने के बावजूद आपके पास एक ओटीपी आना चाहिए, और वो ओटीपी अगर आप डालते हैं तो ही आगे बढ़ना चाहिए. तो ये भी आजकल एक फैक्टर है. देन प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक. An attacker who attempt to gain unauthorized access to an organization network may then try to obtain higher level privilege using what's known to a privilege escalation exploit. Successful privilege escalation attack grant threat actor privilege that normal user don't have. हैकर क्या करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा प्रिविलेज लेने की कोशिश करते हैं. प्रिविलेज मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर, एक ऐसा रोल अपने आप को देंगे जिसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकें. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कॉलेज का एग्जांपल लूं तो एक वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी का होता है या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी या एक्सेस होता है. तो वो जब अटैक होगा तो उसके रूल की कॉपी करना आप पसंद करेंगे रादर देन किसी और पर्सन के. टिपिकली privilege escalation occur when the threat actor take advantage of a bug, configuration oversight, and programming error or vulnerability in application. This usually occur after a hacker has already compromised a network by gaining access. ऑब्वियसली बात है, ये होगा कब, जब आपके सिस्टम पे नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी कंट्रोल अटैकर का होगा, तभी तो प्रिविलेज चेंज कर सकता है. टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन, organizations should look for and remediate security weak spot in their IT environment on a regular basis. They should also follow the principle of least privilege, that is, limit the access right for user to the bare minimum permission they need to do the job, and implement security monitoring. Organizations should also evaluate the risk to their sensitive data and take the necessary steps to secure the data. Then insider threat. This is a malicious or accidental threat to an organization security or data typically attributed to employee, former employee or third party, including contractor, temporary worker or customer. To detect and prevent insider threat, implement spyware scanning program, antivirus program, firewall, and a rigorous data backup and archiving routine. In addition, train employee and contractor on security awareness before allowing them to access the corporate network. Implement employee monitoring software to reduce the risk of the data breaches and theft the intellectual property by identifying the careless, disgruntled, or malicious insider. Then a point of phishing attack. In the phishing attack, an attacker masquerades as a reputable entity or a person in an email or other communication channel. The attacker using phishing email to distribute malicious link to the attachment that can perform a various variety of functions, including extracting login credential or user account information from victim. A more targeted type of phishing attack known as spear phishing occur when the attacker invests time researching the victim to pull off
एंड इवन मोर सक्सेसफुल अटैक। जैसे अभी मैंने आपको चोर वाले एग्जांपल से भी कहा था, अगर आपको किसी घर में चोरी करनी है तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई योर टारगेट फर्स्ट। तो फिशिंग अटैक भी उसी तरीके से का है। आपको एक ऐसी लिंक दी गई, आपको लगा ये लिंक जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बार आपको फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिया था, आपको लगा यार ये फ्लिपकार्ट की साइट है, बट वो फ्लिपकार्ट की साइट नहीं थी। वहाँ वो एक फिशी लिंक था जिसके ऊपर आपने क्लिक किया एंड फाइनल एंड अल्टीमेटली योर यू लॉस योर डाटा और लॉस योर मनी। ये तो ऑब्वियसली बात है कि किस टाइप का अटैक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड malware attack. This is a broad term for different type of malicious software that are installed on an enterprise system. मालवेयर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज आती हैं। मालवेयर एक जनरल टर्म है। मालवेयर इंक्लूड ट्रोजन, वॉर्म, ransomware, adware, spyware, and various type of viruses. Some malware is inadvertently installed when an employee click on ads, visit an infected website, or install freeware or other software. Sign on malware include unusual system activity such as sudden loss of disk space, unusually slow speed, repeated crashes or freezes, an increase in unwanted internet activity, and pop-up advertisement. Installing an antivirus tool can detect and remove malware. These tools can either provide real-time protection or detect and remove the malware by executing routine system scan. तो साइन तो आपको बहुत से तरीके से मिल सकते हैं। आप एक फाइल खोल लें, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही है, या कोई आपकी फाइल इन फोल्डर ओपन ही नहीं हो रहा है आफ्टर क्लिकिंग, या एग्जीक्यूटेबल वर्क नहीं कर रही है, और बहुत सारे तरीके से आपका मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं, डुप्लीकेट कॉपीज बन गई हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो बहुत ही कॉमन टाइप के सिनारियो हैं जिनके थ्रू आपकी सिक्योरिटी आपको पता चल सकता है देयर इज अ मॉलवेयर अटैक। अब ऑब्वियसली बात है, मालवेयर रिमूव करने के लिए जिस टाइप के मॉलवेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोप्रिएट मालवेयर रिमूविंग टूल होते हैं। बट एक आप इन शॉर्ट एक एंटीवायरस टर्म, जैसे मालवेयर एक जनरल टर्म है, उसी तरह आप एंटीवायरस प्रॉपर एंटीवायरस से इसको हैंडल कर सकते हैं। देन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। A threat actor launches a DOS attack to shut down an individual machine or an entire network so that it is unusable to respond services request. आप साइट आप कोई पर्टिकुलर अपनी कंपनी की वेबसाइट ही खोलते हैं, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट खोल लें, या 10 लोग आपकी कंपनी की वेबसाइट खोल लें, एक ही खोल पा रहा है, या बाकी सब लोगों को आ रहा है कि पेज इज नॉट वर्किंग या सर्वर डाउन। इसका मतलब ये हो सकता है ऐसे सिनेरियो के अंदर किसी ने आपके सर्वर के ऊपर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया है, जिसकी वजह से आपका सर्वर प्रॉपर साइट का रिस्पॉन्स ना करके सर्विसेज आपकी डाउन हो गई है। DOS attack do this by flooding the target with the traffic of sending it some information that trigger a crash. ये करेंगे कैसे? आपके सर्वर पे कई डिफरेंट आईपी एड्रेस से इतने ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, रिक्वेस्ट मतलब ट्रैफिक हो गया, इतनी ज्यादा ट्रैफिक आएगा कि एक तरीके से आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो जब एक जेन्युइन पर्सन आपकी कंपनी का रियल में रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर को, क्योंकि ऑलरेडी क्रैश कर गया, तो उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये बेसिकली एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है। उसके लिए ये और रिक्वेस्ट की तरह है, और आपका सर्वर की अब एबिलिटी ओवर हो गई है कुछ रिस्पॉन्ड करने की, तो डेफिनेटली वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। An organization can typically deal with DOS attack that crashes a server by simply rebooting the system. एक तरीका ये आप इससे रिबूट कर लें अपने सिस्टम को या सर्वर को। In addition, reconfiguring firewall, router and server can block any bogus traffic. Keep router and firewall updated with the latest security patches. Also, application front end hardware that is integrated into a network can help analyze and screen data packet that is classify data as priority, regular or dangerous.
as they enter the system. The hardware can also help block threatening data. Then man in the middle attack is, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है ना समथिंग न्यू, मैं इनके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा जल्दी से इनको ओवरव्यू कर देते हैं. Man in the middle attack is a one in which the attackers secretly intercept and alter the message between two parties who believe they are communicating directly. मैंने पहले भी बताया था, जैसे A B से बात कर रहा है, B A से बात कर रहा है, someone is coming inside that communication, और अब वो दोनों के बातों को इंटरसेप्ट कर रहा है. In this attack, the attacker manipulate both victims to gain access to the data. Example, man in the middle attack include session hijacking, email hijacking और वाईफाई इवेस्ट ड्रॉपिंग. वो बीच में आ गया तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, कोई ईमेल ए बी को भेज रहा है, बी ए को भेज रहा है, बीच वाला पर्सन इज गेनिंग दैट. कहता although it is difficult to detect man in the middle attack, there are various ways to prevent them. One way is to implement an encryption protocol such as transport layer security, जिसकी हेल्प से आप मैन इन द मिडल अटैक को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं. That provide authentication, privacy and data integrity between the two communicating computer. Another encryption protocol is the SSH, a network protocol that give user a particular system administrator a secure way to access computer over an unsecured network. Then enterprise should also educate employees to change to the dangers of choosing any public Wi-Fi, such as it is easier for a hacker to hack this connection. Generally, अगर आपको you are also all of them are computer person, तो आपको पता भी होगा कि कई बार जैसे हम जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, तो देर आर फ्री वाईफाई, या किसी होटल में स्टे करते हैं तो जनरली आज की डेट में वहाँ फ्री वाईफाई मिलता ही मिलता है. तो डोंट यूज दैट वाईफाई नेटवर्क until unless there is some emergency for you. क्योंकि ज्यादातर क्या है, ये जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी एक नेटवर्क बना हुआ है जिसके अंदर कोई भी अटैकर एंटर कर सकता है. ठीक है वो, और अगर आप उस नेटवर्क से जोड़ते हैं तो कहने का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर ऑलरेडी अटैकर है, और अगर आप उस सर्कल के अंदर एंटर करते हैं तो देयर इज अ चांस दैट योर सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे से आप अपने आप को बचा सकते हैं. तो इट्स अप टू यू. बाकी तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न है पासवर्ड अटैक. तो कंसर्न ये है कि दिस टाइप ऑफ अटैक is aimed specifically at obtaining user password or account password. To this, hacker use a variety of methods, including password cracking program, dictionary attack, password sniper, or guessing password via brute force trial and error. अब पासवर्ड को गैस करने की आपको अगर किसी पर्सन का पासवर्ड चाहिए तो आपके पास इसके कई सारे मेथड्स हो सकते हैं. उनमें से एक मेथड है पासवर्ड क्रैकिंग प्रोग्राम्स. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि डेफिनेटली पासवर्ड क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं. अब नो डाउट दे आर नॉट अ लीगल प्रोग्राम्स. अगर आपने डार्क वेब के बारे में पढ़ा हो, काली लिनक्स के बारे में सुना हो, तो यहाँ पे इस टाइप के ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं कि इनका यूज किसी और काम के लिए नहीं होता, बट द मेजोरिटी ये फेवरेट प्लेटफॉर्म्स हैं हैकर्स के लिए. वो इन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और किसी भी पासवर्ड को हैक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर उनके पास होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं. Then there is one attack called dictionary attack. अब डिक्शनरी अटैक क्या है? पासवर्ड स्नाइपर. अब डिक्शनरी अटैक में बेसिकली क्या होता है कि एक सेट ऑफ, जैसे डिक्शनरी बनी होती है कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं वर्ड के, कि यूजर ने ये आईडी डाली तो ये पासवर्ड हो सकता है, इससे मैच नहीं हुआ था इससे हो सकता है. और
ब्रूट फोर्स अटैक तो बहुत जनरल अप्रोच है ही किसी भी तरीके की, मतलब आपको पासवर्ड मालूम नहीं है बट आप डेट ऑफ बर्थ से गैस कर रहे हो, उसके निक नेम से गैस कर रहे हो, उसके पेरेंट्स के नेम से गैस कर रहे हो लोग, या उसके डेट ऑफ बर्थ से गैस कर रहे हो। लोग जनरली पासवर्ड रखते हैं, उनमें कुछ ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी ही है कि पासवर्ड ऐसा रखा जाए जिसे रखने वाला याद रख सके। अब याद कैसे रखेगा? अगर वो कोई ऐसा नंबर होगा जो उससे क्लोजली रिलेटेड होगा। नाउ ए पासवर्ड क्रैकर is an application program used to identify an unknown or forgotten password to a computer or network resources. अब बताया पासवर्ड क्रैकर क्या है? पासवर्ड क्रैकर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम used to identify an unknown or forgotten password to a computer or network resources. This help an attacker obtain unauthorized access to the resource. A dictionary attack is a method of breaking into a password protected computer or server by systematically entering every password in a dictionary as a password. इन जितने भी पॉसिबल, जैसे मैंने बताया डिक्शनरी अटैक के अंदर आईडी से मैच करने के जो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं, सिस्टम उनको सभी को ट्राई करता है, एक हैकर उनको सभी को ट्राई करता है, और ये टाइप करके ट्राई नहीं करता, दे यूज अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट, जो एक टाइप में मल्टीपल पॉसिबिलिटी को ट्राई करते हैं। इसलिए जनरली आपको पता होगा, ये कहा जाता है, आपने देखा भी होगा बहुत यूजली कि जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहता है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल केस लेटर होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, केस सेंसिटिव कैरेक्टर होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिक्स को अगर समझेंगे तो इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब यूज होगा तो एक बड़ा नंबर क्रिएट होगा। जितना आप सिर्फ अल्फाबेट यूज करेंगे तो देखिए ए से जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। इसका मतलब है हर एक कैरेक्टर के ऊपर 26 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप इसमें नंबर्स ऐड कर देंगे तो ये 26 प्लस 10 36 हो जाएंगे। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देंगे तो मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर 10 होते हैं, तो यही पॉसिबिलिटी 46 हो जाएगी, यानी कि पर एक कैरेक्टर 46 टू 50 पॉसिबिलिटीज है अलग अलग। और अगर इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा तो ऑब्वियसली नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। नाउ टू हैंडल पासवर्ड अटैक, ऑर्गेनाइजेशन शुड अटैक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर यूजर वैलिडेशन। अब पासवर्ड अटैक से बचना है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं, दूसरा इन एडिशन यूजर शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे मैंने बताया कि आप जितना छोटा रखेंगे क्रैक करने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितने कम कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे उतने क्रैक करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाना जरूरी है। इन एडिशन यूजर यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट इंक्लूड एटलीस्ट 7 character as well as mix of upper and lower letter, numbers and symbols. Users should change their password regularly and use different password for different account. In addition, organization should use encryption on any password stored in the secure repository. और डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पासवर्ड को डायरेक्टली नहीं स्टोर करती, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ वो एनक्रिप्शन यूज करती हैं पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पासवर्ड है XYZ, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट कर लेंगी कोई एनक्रिप्शन में। मान लीजिए वो बन गया ए देश स्टार, ये इसका एनक्रिप्शन बन के निकला। अब इसको स्टोर किया, अगर कोई पर्सन डाटाबेस के अंदर, कोई अटैकर डाटाबेस के अंदर आके सिस्टम पे अटैक भी करता है तो भी एटलीस्ट वो ओरिजिनल पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो भी वो ओरिजिनल पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ही हार्डली गेट दिस। और ये अपने आप में एनक्रिप्टेड फॉर्म है। स्पेशली जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं
उनमें जो आप पासवर्ड बनाते हैं एक्चुअली उसके बारे में खुद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो सेव होता है ना, एनक्रिप्टेड होके सेव होता है। और जब आप री लॉगिन करते हैं कभी भी, तो मान लीजिए आपके अकाउंट में जो आपने पासवर्ड रखा था XYZ, ठीक, लेकिन सेव हुआ वो इस फॉर्म में, ठीक है, A फैक्टोरियल X, ये स्पेशल कैरेक्टर है, A इज अ कैरेक्टर, X या मल्टीप्लाई मान लीजिए, ये इन कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन में वो सेव हुआ। अब आप कुछ दिनों बाद लॉगिन करते हैं सिस्टम के अंदर, तो आप मान लीजिए डालते हैं अगेन XYZ, तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि XYZ मैच कैसे होगा इस पासवर्ड से, ये डाटाबेस के अंदर है। तो जब आप XYZ डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दोबारा से एनक्रिप्शन होता है, इस एंड पे एनक्रिप्शन होता है। जब एनक्रिप्शन होता है तो ये फिर से एक पासवर्ड बनता है, ये वाला, ये पासवर्ड बनता है। और जब ये पासवर्ड बनता है तो ये पासवर्ड इससे मैच होता है, एनक्रिप्शन। और मान लीजिए किसी ने कोई और पासवर्ड ट्राई किया, मान लीजिए गैस किया XYZ, तो मान लीजिए XYM ट्राई किया, तो ऑब्वियसली बात है इसका एनक्रिप्शन करने के बाद A फैक्टोरियल X नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, मान लीजिए Z बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे मैच नहीं होगा और एरर आ जाएगी, यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट मैच। नाउ another attack is the web application attack. This is an incident level in which a web application is the vector of the attack, including exploit of code level vulnerability in an application, as well as thwarting authentication mechanism. वेब एप्लीकेशन अटैक में जनरली बहुत सारे अटैक वेब एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते हैं या उसके ऊपर अटैक होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक्स होते हैं, आप ये समझ सकते हैं। जो जो एक वेब एप्लीकेशन होती है, कह रहा है एक तो कोड के अंदर कोई फ्लो है, मान लीजिए कोड के अंदर किसी ने ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म में या लूज कोडिंग करी हुई है जिसका एडवांटेज अटैकर ले सकते हैं। One example of a web application attack is a cross-site scripting attack. This is a type of injection security attack in which attacker inject data such as malicious script into a content from otherwise trusted website. जैसे SQL इंजेक्शन होता है, अगर आपको आइडिया होगा तो उसमें क्या होगा कि वन काइंड ऑफ क्वेरीज इंजेक्ट की जाती हैं तो सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट मेलिशियस स्क्रिप्ट सिस्टम में सर्वर पे इंजेक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से अटैकर सिस्टम को करप्ट करता है। Enterprises should review code early in the development phase to detect vulnerabilities. Static and dynamic code scanner can automatically check for this. Also implement bot detection functionality to prevent bot from accessing application data. अब आपको कैप्चा वाला सिस्टम मालूम होगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या कोई भी आपने लॉगिन किया किसी सिस्टम के अंदर, तो आपने देखा होगा कि एक कैप्चा वाला फैसिलिटीज अवेलेबल होती है कि एंटर कैप्चा, और कैप्चा के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो इजीली रीडेबल नहीं होते और उनको अपने एंटर करना होता। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अब ये हो गया एक्स, जेड स्मॉल में, आर कैपिटल में, ए कैपिटल में, तो ये ह्यूमन बीइंग रीड कर पाएगा, लेकिन मशीन जो बोट्स होते हैं जनरली वो रीड नहीं कर पाएंगे। और साइट को एक्सेस करने के लिए, आगे का एक्सेस करने के लिए आपको ये डालना जरूरी है, ये कॉम्बिनेशन। तो इस वजह से ये जैसे बताया कि ये सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि यूजर्स ने जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं एक्चुअली उन्होंने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर मान लीजिए उन्होंने इस सिक्योरिटी लेवल को नहीं अडेप्ट किया तो डेफिनेटली बोट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हो ही जाएगा,
बट जितने आप सिक्योरिटी लेयर्स को ऐड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, उतनी पॉसिबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी अटैक होने की। मैंने पहले भी बताया, इन सॉफ्टवेयर वर्ड नथिंग इज सिक्योर, ठीक है, क्योंकि आप भी सिस्टम के अंदर किसी एप्लीकेशन के थ्रू घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और कोई नेटवर्क कोई मीडियम तो ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क वो मीडियम में डेफिनेटली कोई लूप फॉल हो सकता है, और जिसका एडवांटेज कभी भी अटैकर लगा सकते हैं। देन है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, शॉर्टकट में एपीटी। एन एपीटी इज अ prolonged and targeted cyber attack typically executed by the cyber criminals or nation states. In this attack, the intruder gain access to a network and remain undetected for extended period of a time. The APT goal is usually to monitor network activity and steal data rather than cause damage to the network organizations. अब देखिए इस अटैक का नेचर क्या है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ये किसी अटैकर इसे कब यूज करते हैं, जब उन्हें इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं करना, सिर्फ रीड करते रहना है। वो जनरली ये बड़े लेवल पे इस टाइप के अटैक होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्री वाइज मान लीजिए इंडिया चाइना टसल चल रहा है फॉर एग्जांपल, और चाइना अपने हैकर्स को कहता है कि हमें इंडिया की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो अपने हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उनके ऊपर अगर अटैक करते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करना चाहेंगे कि एक बार अगर वो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, तो वो सिस्टम में बने रहे, सिस्टम को छेड़छाड़ न करें, उसमें कुछ भी चेंज ना करें, ताकि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ना हो। जब कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होगी ही नहीं, तो इससे एडवांटेज क्या होगा, उसके पकड़े जाने के चांसेस कम होंगे। अच्छा, वो कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं करेगा, पर वो काम क्या करेगा, वो सिर्फ इतना काम करेगा कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए इंडिया के क्या डिफेंस प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करने वाले हैं, अगर कोई वॉर होती है किस किस टाइप की स्ट्रेटेजी है, या कहाँ कहाँ पे उनके एयरप्लेन या उनके फाइटर जेट प्लांट हुए हैं, या कौन कौन सा वो रूट फॉलो कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, जो कि वो सारा ले रहे होते हैं। कहते हैं कि अगर सिंपल बात है, अगर आर्मी फाइट होती है और आपको ऑलरेडी पता है कि अपोनेंट क्या करने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है यू आर वन स्टेप अहेड, क्योंकि आप पहले ही प्रोटेक्शन उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन मॉनिटरिंग incoming and outgoing traffic can help organization prevent hacker from installing backdoor and extracting sensitive data. Enterprises should also install web application firewall at the edge of their network to filter traffic coming into their web application server. This can help filter out application layer attacks such as SQL injection attack, often used during the APT infiltration phase. Additionally, a network firewall can monitor internal traffic. अब इससे बचने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो तो यही है कि एक तो आप फायरवॉल इंजेक्ट करें, अब नेटवर्क के अंदर फायरवॉल लगाएं बेसिकली, और उसके थ्रू मॉनिटर करें कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है, और अपने ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक है आप उसको भी देखिए। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर चाइना चाहता है कि इंडिया के इंफॉर्मेशन को वो गेन करे, और उसने हमारे इंटरनल नेटवर्क पे एक्सेस किया हुआ है किसी भी मान लीजिए स्पाईवेयर के थ्रू, और वो इंफॉर्मेशन स्टील करके इन द एंड उसका गोल यही है कि इंफॉर्मेशन को दूसरे एंड पे भेजना। तो अगर वो इंफॉर्मेशन को दूसरे एंड पे भेजेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो नेटवर्क ही तो यूज करेगा,
और अगर नेटवर्क यूज करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये देख सकती है कि यार हम ये जो हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन किस किस जगह जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार चाइना में जा रही है, तो उनको ऑब्जर्व हो गया चाइना तो हमने भेजना ही नहीं था, ये वहां कैसे जा रही है, देन दे गेट द आइडिया दैट देयर कुड बी एन अटैक।